Hello friends, today we are going to see 6th standard 7th chapter rock and rock types. Here I have framed some question and answer. With the help of this question and answer, it will be easy for you all to understand the chapter. Okay, I will go in a bilingual language, English and Hindi, so that you can understand it very easily. Please subscribe my channel so that you will get more and more videos. You will get all the notification when I will upload all the videos. Okay students? Now, what is rocks? You all of might have seen the rocks जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं. Okay, how it is formed? How it is made? We doesn't make it. It is already formed by naturally. How it is formed? It is formed. Rocks are a mixture. It is a mixture of different minerals formed by natural process. वो एक natural process है. कोई इंसान नहीं बनाया जाता है वो. It is a natural process and it is a formation of more than वन और मोर देन मिनरल्स. जब एक साथ सब मिनरल्स इकट्ठा होती है एट दैट टाइम रॉक्स आर फॉर्म्ड. ओके, एंड रॉक्स कहाँ पर कौन से स्फीयर में हम देखते हैं? वी सी रॉक्स इन लिथोस्फीयर. ओके, एंड द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स बनने की मेन प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड है? एक तो मिनरल्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड है एंड दर प्रोपोर्शन कम ज़्यादा. इट्स डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन एज वेल एज ऑन द फॉर्मेशन प्रोसेस. वो कैसे फॉर्म होता है, लिक्विड स्टेट से कैसे सॉलिडिफाइड बनता है, द फॉर्मेशन प्रोसेस. ओके, एंड नेम द मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. अभी जो मेजर जो ज़्यादा तक रॉक है वो कौन से मिनरल से ज़्यादा तक बन चुका है? इट इज़ फॉर्म्ड सिलिका, aluminium, magnesium and iron. Okay, and friends, these questions it will be useful for Maha TET exam also, because one question it is compulsory they ask in TET exam. How many types of rocks are there? There are 3 types of rocks are there. How many types of rocks are there? 3 types. And what about the name of that rocks? Igneous rocks, that is igneous rocks is also called as primary rocks, and the next one, second one is sedimentary rocks, and the third one it is metamorphic rocks. Okay, now how igneous rocks are formed? अब igneous rocks कैसा बनता है? You might have seen the volcano तो आप देखे होंगे. Yes, here they have given. जब volcano होती है उस टाइम पे the molten material, molten जो पिघला हुआ चीज़ होती है, पिघला हुआ जो जब पिघल जाता है एट दैट टाइम मैग्मा विद इन द क्रस्ट एंड लावा ऑन द सरफेस. पहले वो पिघल जाता है, देन पिघलने के बाद जब क्रस्ट अंदर से एकदम क्रस्ट होके बाहर लावा जैसे पिघलता होता है, एट दैट टाइम आफ्टर सम टाइम्स इट कूल्स डाउन. थोड़े टाइम के बाद कूल हो जाता है एंड सॉलिडिफाइज. बाद में सॉलिड मीन्स व्हाट? एक कड़क चीज़ जब कड़क बन जाती है एट दैट टाइम इट गिव्स राइज टू रॉक्स. दैट इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स. मोल्टन मैग्मा से जो होती है. एंड देर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इग्नियस रॉक्स. फ्रेंड्स, always keep it remember this basalt rock, all these examples they ask in the Maha TET exams also. Igneous rocks this rock is also called as primary rocks. Igneous rock को अपन और एक नाम क्या है? प्राइमरी रॉक है. ओके, these rocks appear hard. ये जो रॉक है एक्चुअली सॉलिड हो जाती है एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड होमोजीनियस. These rocks are heavy as well. ये जो रॉक igneous रॉक है ये heavy भी होता है. We don't find fossils in these rocks. Actually fossils क्या है? इस fossils के बारे में आगे have written the question with fossils. What about the meaning of fossils? At that time you will understand it properly. And महाराष्ट्र में वेयर वी फाइंड इग्नियस रॉक? द महाराष्ट्र प्लेटो एंड द सह्याद्रीज. ये जो महाराष्ट्र प्लेटो है, प्लेट्यू एंड जो सह्याद्रीज है, बोथ दिस प्लेसेस आर फॉर्म्ड आउट ऑफ इग्नियस रॉक्स ओनली. यहाँ पर ज़्यादा तक हम क्या देखते हैं? इग्नियस रॉक्स देखते हैं, महाराष्ट्र प्लेट्यू एंड सह्याद्रीज. एंड इग्नियस रॉक्स में एकदम इम्पोर्टेंट रॉक जो है दैट इज बेसाल्ट. Basalt is a major example. Basalt जो rock है, it is a major example of igneous rocks. Okay, and pumice it is also an example of igneous rock.
Okay, so what about the igneous rock? It is called as a primary rock also, and it is hard and homogeneous. It is heavy also, and we don't find fossils in these rocks. And Maharashtra Plateau and Sahyadris, both the places are formed out of igneous rocks. And basalt जो है एक major example igneous rock का, and pumice is an example of igneous rock. Okay, and now we will go to the second type of rock, that is sedimentary rocks. Now what about sedimentary rocks? Sedimentary rocks are formed out of deposition of layers. Deposition of layers, वो जब लेयर एक के ऊपर लेयर बनते जाती है, जैसे तूफान होता है, तूफान के टाइम पे द पार्टिकल्स, लेयर पार्टिकल जो है हवा के साथ निकल जाती है. एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो, जब रिवर के थ्रू भी इट इज़ कैरिड आउट, एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाते हैं, जो पार्टिकल्स होती है वो दूसरे जगह पर जाके इट फॉर्म अ लेयर्स. ओके, जब वैसे लेयर्स बनते बनते देयर इट बिकम्स अ सेडिमेंट. सेडिमेंट होके deposition of layers of sediments and their compaction. Okay, and we can find fossils in sedimentary rocks. और sedimentary rocks में अपन fossils देख सकते हैं. एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है एकदम ब्रिटल होता है, मतलब शाइनी होता है, एंड लाइट वेट के होता है. इग्नियस रॉक हैवी वेट के होते हैं, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इट इज़ लाइट वेट. ओके, एंड सेडिमेंट्री रॉक का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, shale, corals, etc. are examples of sedimentary rock. This is the best example for sedimentary rock. We can see or find coal in sedimentary rocks. और coal से हम क्या बनाते हैं? From coal only we get it turns, when metamorphosis हो जाता है, at that time it becomes diamond. Okay, that we will see it later. And ये जो sandstone है, sandstone में भी एक sandstone है, that is red sandstone. और रेड सैंडस्टोन है वो कहाँ पर ज़्यादा तक हम देख सकते हैं? वी कैन सी इन जयपुर, दैट इज़ राजस्थान. ओके, एंड दिस रॉक वॉज यूज टू कंस्ट्रक्ट रेड फोर्ट. और ये जो रेड सैंडस्टोन है, इस रेड सैंडस्टोन से उन्होंने क्या बनाया? रेड फोर्ट बनाया. वो कहाँ पर है? दिल्ली में है. इट इज़ ए दिल्ली. ओके, नाउ मैंने तुम्हें आई सेड यू अबाउट दैट फॉसिल्स. नो व्हाट इज मेंट बाय फॉसिल्स? ओके, now here you all can see it. जो फिश का जो यहाँ पर शेप है, what is meant by fossils? जब बरीड एनिमल्स है ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स के जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स है वो जब डेड हो जाते हैं, उसके वजह से ये जो रॉक है, रॉक के ऊपर जब उनका शेप एज इट इज़ आ जाती है, एज द रिजल्ट देयर इम्प्रेशन गेट मार्क्ड इन द रॉक्स. इन जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो इम्प्रेशन ये रॉक्स के ऊपर पड़ जाती है, सो दैट गेट्स पेट्रीफाइड. दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स. और ये जो फॉसिल्स है, ये फॉसिल्स वी हैव सीन इग्नियस रॉक्स में नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक्स में है. ओके, इट इज़ देयर इन सेडिमेंट्री रॉक्स. That is what fossils. Okay, the buried remains of dead animals or plants became subject to heavy pressure. Their impression gets marked in the rocks. Okay, and next is metamorphic rocks. Now you all might be knowing metamorphosis. This word you all might have heard in 4th standard EVS chapter. First lesson, the life cycle of a butterfly. वहाँ पर you might have heard metamorphosis. Now what is that metamorphosis actually? Metamorphosis, because second stage it is caterpillar. कैटरपिलर के स्टेज से जब एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है, एट दैट टाइम द शेप ऑटोमेटिकली चेंजेस. एग्जैक्टली करेक्ट. शेप मीन्स उनके जो रूप है वो ऑटोमेटिकली कैटरपिलर और जो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद एडल्ट बटरफ्लाई बन जाते हैं, टोटली चेंज है उनके साइज में, कलर में एंड लुक में, एवरीथिंग इट चेंजेस. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जब टोटली चेंज हो जाती है. ओके, दैट इज व्हाट व्हेन देयर इज चेंज इन द नेचर में जब चेंज है, एज वेल एज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल रॉक. अभी ओरिजिनल रॉक है उसमें जब चेंजेस हो जाती है, द रॉक्स आर मेटामॉर्फोसिस्ड, मतलब वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाती है, टोटली चेंजेस हो जाती है ओरिजिनल रॉक्स से. ओके, हियर दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स. सी,
जब टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक है, उसका ओरिजिनल नेम, इग्नियस रॉक का ओरिजिनल नेम, एक रॉक का नाम है ग्रेनाइट। ऐसा दिखता है। जब मेटामॉर्फोसिस बन जाता है, दैट टाइम इट बिकम्स नीज, और उसका शेप, उसका कलर देखो फिर कैसे चेंज हो गया, टोटली डिफरेंट। ओके, और इग्नियस रॉक का और एक एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, ओरिजिनल रॉक का नाम है बसाल्ट, जो हम अभी पढ़े थे। इग्नियस रॉक का एक बेस्ट एग्जांपल है। ऐसा दिखता था। जब मेटामॉर्फोसिस बन गया, एट दैट टाइम इट बिकम्स एम्फीबोलाइट। ऐसा शेप में हो गया वो, कलर एंड एवरीथिंग। सेडिमेंट्री का वी हैव सीन सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन इट लुक्स लाइक दिस। जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है ओरिजिनल रॉक से, जब नेचुरल वे में कुछ उनके अंदर कुछ चेंजेस होने की वजह से वो क्या बन जाता है, मार्बल हाउ इट लुक्स लाइक दिस। ओके, एंड सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा एक एग्जांपल है कोयला। इट लुक्स लाइक दिस, बट व्हेन इट बिकम्स मेटामॉर्फोसिस इट चेंजेस इनटू डायमंड। कोयला कहाँ पर है और डायमंड कहाँ पर है, एंड दिस इज द वेरी प्रेशियस स्टोन, डायमंड, यू ऑल नो इट। सेडिमेंट्री का द अदर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, इट लुक्स लाइक दिस। व्हेन इट बिकम्स मेटामॉर्फोसिस it's क्वार्ट्जाइट, इट्स लुक लाइक दिस। सेडिमेंट्री का वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज शेल, एंड व्हेन इट बिकम्स मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंजेस हो जाती है, इट बिकम्स स्लेट। दिस यू माइट हैव सीन दिस everywhere, most of the places we used to see like this। Okay, and which rock gets into diamond when it is metamorphosis? Which rock? I've said now, diamond कौन से rock बनती है, coal। and the ताजमहल जो है at आगरा is built in कौन से मार्बल, किससे बना है ताजमहल, मार्बल से बना है। and that marble कहाँ से मिला है, that marble from where they took that marble, they took it from the mine that is Makrana in राजस्थान के माखराना के प्लेस से that marble they took it। okay, and this is the भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पर है, रिवर नर्मदा वैली के इधर, रिवर नर्मदा यहाँ पर है। एंड बोथ द साइड्स इट इज मार्बल। और जब सनसेट एंड और ये भेड़ाघाट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, वेर इट इज मध्य प्रदेश। ओके, इवनिंग टाइम सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे जब सन के रेस इसके ऊपर पड़ती है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, एंड जब फुल मून नाइट होती है, एट दैट टाइम ऑल्सो इट इज एन्चेंटिंग सीन। मतलब ऐसा सीन आप कहाँ पर देख नहीं सकते हो, फुल मून डे के टाइम पे रात को देखना चाहिए दिस मार्बल को, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, and this is Maharashtra map they have shown where we are getting the, and which rock is famous over here. Everywhere you can see basalt rock only, basalt rock के ऊपर next granite only, here you all can see granite, and then laterite only in Sindhudurg। okay, so नेम सम मेटामॉर्फिक रॉक का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक तो मार्बल, डायमंड, क्वार्ट्जाइट, स्लेट एक्सेट्रा, सम एग्जांपल्स हैव रिटन। एंड विच रॉक इज स्प्रेड मोस्टली इन महाराष्ट्र में कौन से रॉक है, बसाल्ट। ओके, एंड ग्रेनाइट रॉक कहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ग्रेनाइट रॉक इन ईस्टर्न एंड सदर्न कोंकण। ईस्टर्न और सदर्न कोंकण में मोस्टली वी कैन सी ग्रेनाइट रॉक। ओके, देखो ग्रेनाइट ईस्टर्न और सदर्न के थोड़े प्लेस में वी कैन सी ग्रेनाइट। एंड नेक्स्ट लेटराइट रॉक वेर वी कैन सी इट इन साउथ कोंकण। सी लेटराइट रॉक साउथ कोंकण सिंधुदुर्ग में। ओके, एंड नेक्स्ट वन लेटराइट रॉक वेर इट इज, लेटराइट रॉक इज वेरी मच फेमस साउथ कोंकण पे, कहाँ पर ज़्यादा तक फेमस है, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ओके, this one word answer, if you will understand it properly during your exams in TET like this competitive exams, you can clear it very much easily। which monument are built in igneous rock, और igneous rock में कौन से monument बनाए गए हैं, फोर्ट रायगढ़। okay, which types of rocks are predominantly found in central Maharashtra? We have seen central Maharashtra में तो it is basalt rock, साउथ कोंकण लेटराइट, साउथ कोंकण और ईस्टर्न कोंकण में भी लेटराइट, विदर्भ में ग्रेनाइट रॉक। ओके,
I hope you all might have understood very easily about the rocks and types of rocks. Friends, please subscribe my channel. That will be very much useful for you all. Okay, thank you for watching my video.